Students, today we are going to discuss topic nervous system from the chapter Control and Coordination, class 10th Science. Types of neuron. बेटा न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं? These are of three types: sensory neuron, motor neuron and relay neuron. Depending on their function, the neurons are of three types: sensory neuron, also known as receptor neuron; motor neuron, also known as effector neuron; and the third is relay neuron, also known as interneuron. Now, what are the functions performed by these neurons? सबसे पहले sensory neuron. Sensory neuron carry impulses from the receptor towards the central nervous system. बेटा सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो इम्पल्सेस को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. मोटर न्यूरॉन कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द इफेक्टर ऑर्गन. मोटर न्यूरॉन जो है वो इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन्स में लेके जाता है. These effector organs are the muscle cells and the glands of our body. Relay neuron, they occur in central nervous system. They carry impulses from sensory neuron to motor neuron or from one relay neuron to another. Relay neuron जो होते हैं ये impulses को sensory neuron से motor neuron में transfer करते हैं या फिर एक relay neuron से दूसरे relay neuron में transmit करते हैं. Now how the nerve impulse travel in the body? Nerve impulse body में किस तरीके से travel करता है? ये nerve impulse एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है? As we have read about the structure of neuron, बेटा आपने previous classes में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है जिसमें मेन पार्ट्स डेंड्राइट्स, सेल बॉडी जिसको साइटोन भी कहते हैं, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल होते हैं. सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ एक्वायर्ड एट द डेंड्रिटिक टिप. यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्वायर होती है डेंड्रिटिक टिप में जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंड इट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. अब ये डेंड्रिटिक टिप में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन अलॉन्ग द एक्सॉन इनटू इट्स एंड. ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है डेंड्राइट से सेल बॉडी और फिर एक्सन एंड अल्टीमेटली रीचेस द एक्सनल टर्मिनल. जब ये इम्पल्स एक्सनल टर्मिनल पे रीच करता है वहाँ पर कुछ केमिकल्स सीक्रेट होते हैं. दीज केमिकल्स आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर. नाउ दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप which is also known as the synapse between the two neurons and start a similar electrical impulse in the dendrite of the next neuron. बेटा ये synapse जो है आपने previous topic में पढ़ा था it is a microscopic gap between the two neurons. Now the principal neurotransmitter in the human body is acetylcholine. What are these neurotransmitter? ये neurotransmitter बेटा क्या होते हैं? Neurotransmitter is generally a chemical substance that is produced and secreted by the axonal terminal. ये वो chemical substances हैं जो axonal terminal में produce होते हैं and they help in the transmission of impulse to the next neuron. ये जो impulse होते हैं उनको transmit करते हैं next neuron में या muscles में, glands में और other body organs. Now the route of the nerve impulse. जो nerve impulse body के अंदर travel करता है what is the route followed by this nerve impulse? बेटा nerve impulse एक self propagated electric current है जो travel करता है from one end of the neuron to the other end. Now the pathway of the nerve impulse is as follows. सबसे पहले stimulus जो body receive करती है ये stimulus जो है वो आता है डेंड्रिटिक टिप में. जो स्टिमुलस है स्टिमुलस मीन्स द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट टू विच आवर बॉडी रिस्पॉन्ड. ये जो स्टिमुलस है डेंड्रिटिक टिप में आता है. डेंड्रिटिक टिप से ये साइटोन यानी कि सेल बॉडी में ट्रेवल करता है. फ्रॉम सेल बॉडी it enters into the axon.
एक्सॉन में ट्रेवल करता है और एक्सॉन से फिर ये एक्सोनल टर्मिनल में आ जाता है। एक्सोनल टर्मिनल पे जब इम्पल्स आता है तो वहाँ पर केमिकल सिक्रेट होते हैं which are called neurotransmitter, and ultimately these neurotransmitter helps in passing the gap called the synapse between the two neuron, and the impulse reaches the other neuron. So an electrical impulse travel across the synapse only in one direction. ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये सिनेप्स को क्रॉस करने के बाद दूसरे न्यूरॉन पे पहुंचता है, बट द सिनेप्स इट एक्ट एज अ वन वे वॉल। जो इम्पल्स है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, इट कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक। सो द सिनेप्स इट एक्ट एज अ वन वे वॉल। ये मैसेज के इम्पल्स के बैक फ्लो को बचाता है। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज of the release of neurotransmitter on one side of synapse. Impulse travel only in one direction. क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो एक्सोनल टर्मिनल पे प्रोड्यूस होते हैं, they cannot be produced on the dendrite. That's why the impulse they travel only in one direction. और वो डायरेक्शन बेटा होती है from the axonal terminal to the dendrite of the other neuron. Now what are the parts of the nervous system? नर्वस सिस्टम जो है जिस तरीके से हमारी बॉडी सेल की बनती है, नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नर्व सेल। नर्वस सिस्टम को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स arising from the brain and the spinal cord. तो मेन जो नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट हो गए, वन इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल्ड CNS एंड अदर इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कॉल्ड PNS। पेरिफेरल नर्वस को फर्दर डिवाइड किया जाता है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम एंड इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। इसको और अच्छे से समझने के लिए बेटा यहाँ पे आप फ्लो चार्ट देखेंगे। द नर्वस सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ टू पार्ट्स, one is the CNS central nervous system, the other is the PNS peripheral nervous system. Central nervous system is again divided into parts, spinal cord, brainstem and brain. और peripheral nervous system के फिर दो पार्ट हैं, the autonomic nervous system and the somatic nervous system. जो autonomic nervous system है it is again divided into two parts, sympathetic nervous system and parasympathetic